Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you're all doing great. So today we are going to discuss our next lecture, which is about article. So as I already said that if you want to improve your language, so you have to improve your language first, and you have to focus on the basics functions of the language first. So let's start our lesson, which is about articles, indefinite articles, definite articles, omission of the articles. So let's start. Okay, so the word a and they are called articles. Okay, these articles are normally used before nouns. Okay, a and n are called indefinite articles, while the is known as definite articles. Okay, so article basically वो words होते हैं like ए एन दी, ये प्रोमिनेंट करते हैं हमारे नाउन को. ठीक है, लाइक कोई भी अगर वाउल्स बेस्ड वर्ड हैं सो देन हम एन यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम ए यूज़ करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल ए बुक, ए टेबल, ए पेन, ए ट्री, ए house, an umbrella, an orange, an innocent man, an apple, and elephant. So the above words refers to any of its kind. Such articles are called indefinite articles. These indefinite articles stand for only singular form of nouns and is used only before word with a vowel as their first letter, a, e, I, o, u, as I already told you. Okay, so for example, he is an honest man. I'm late by an honor. Okay, so हमने क्या लर्न किया है, अगर कोई भी वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर वाउल्स लेटर है, लाइक ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, देन बिफोर वर्ड हम एन यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम ए यूज़ करेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल थी द वर्ड हॉनेस्ट एंड और डोंट हैव अ वाउल्स एज अ फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, बट दिस वर्ड बिगिंस विद द वाउल साउंड. ओके, सो अगर वो वर्ड यूज़ नहीं हो रहा है उसके फर्स्ट लेटर में वाउल्स, लेकिन उसका साउंड वाउल्स पर बेस्ड है, देन हम उससे भी पहले एन यूज़ करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल द बुक बुक्स, द हाउस हाउसेस, द टेबल टेबल्स, द ट्री ट्रीज, द फ्रूट फ्रूट्स. These articles refer to particular noun, so the is called as a definite articles. Further, the can be added before singular and the plural forms of the nouns. To say the definite article is used before singular countable nouns, plural nouns, in the plural countable nouns, and also before uncountable nouns. Okay, so definite articles हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हो उससे पहले, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो उससे भी पहले, एंड अनकाउंटेबल नाउन हैं उससे भी पहले हम डेफिनाइट आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो दी इज़ अ बेसिकली डेफिनाइट आर्टिकल. ओके, सो फॉर एग्जांपल मिल्क, दी मिल्क हमने यहाँ पर राइट किया. हेयर दी इज़ यूज्ड एज एन आर्टिकल बिफोर अनकाउंटेबल नाउन. सो मिल्क हम काउंट नहीं कर सकते हैं, सो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने मिल्क से पहले दी को यूज़ किया. सम अदर एग्जाम्पल ओवर हेयर, अ डोजन ऑरेंजेस, अ battalion of soldiers. So general rules is that a is used before the singular nouns that are unspecified. Before dozen, ठीक है, and battalion don't reveal singular aspect of the noun. These are expectations. Since morning I am a bit worried. Okay, in the above sentence the article a is used before a clause. Okay, so a जो है, ठीक है, यूज़ किया जा सकता है बिफोर सिंगुलर नाउन्स के, but that are unspecified. Okay, some other examples over here हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. The sun rises in the east and sets in the west. Okay, so the east, ठीक है, and the west. So the nights are shorter
in the summer while they are longer in the winter. So summer से पहले हमने the लगाया and winter से पहले भी हमने the लगाया. So here the articles are used to refer to the natural phenomena. यहाँ पर हम कोई भी ऐसा sentence हो जो based करता होगा ऑन फिनोमेना पे, नेचुरल फिनोमेना पर जो बेस्ड करते होंगे सेंटेंसेस, उसमें भी हम आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं, जो फॉर एग्जांपल लाइक दी समर एंड द विंटर. ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंडेफिनेट आर्टिकल्स. बेसिकली क्या होते हैं? An article is a word used to modify a noun which is a person, place, object or idea. So indefinite article basically वो article होते हैं जिससे हम modify कर सकते हैं अपने noun को, जो based करते होंगे place पर, person, object और idea पर. For example, indefinite article unspecified, a एन. ओके, सो डेफिनाइट आर्टिकल स्पेसिफाइड दी. ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने ये डिस्कस कर लिया है कि इनडेफिनाइट आर्टिकल्स कौन से होते हैं. बेसिकली अनस्पेसिफाइड होते हैं जो बेस्ड करती हैं ए पर और एन पर. जो वाउल्स बेस्ड वर्ड होंगे उससे पहले हम एन लगाएंगे, जो वाउल्स बेस्ड नहीं होंगे वर्ड उस पर हम ए लगाएंगे. बट जो एन है, हम अगर उसका साउंड ऑन बेस्ड होगा वाउल्स पर तो हम एन यूज़ कर सकते हैं बिफोर words. Okay, so indefinite articles a and generally a or an is used before singular countable noun. For example, a book, a table, and apple. Okay, usage of indefinite articles: if a word starts with the consonant sounds, we can use a before that. For example, I need a dictionary. Here the word dictionary has a consonant sound, so we can use a before the common noun dictionary. ओके, सो यहाँ पर क्या पॉइंट है? डिक्शनरी बेसिकली हैज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड डी, सो वी कैन यूज़ ए बिफोर द कॉमन नाउन डिक्शनरी. ओके, सो हम डिक्शनरी से पहले ए को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कॉमन नाउन के तौर पर ये यूज़ किया जा रहा है. सो हम यहाँ पर ए डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं, एंड डिक्शनरी यूज़ नहीं करेंगे. ओके, क्योंकि साउंड डिक्शनरी है. ठीक है, देन हम उस पर ए यूज़ करेंगे. ठीक है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि नेक्स्ट लेटर है वो आई है जो कि बेस्ड है वाउल्स पर, बट यहाँ पर क्या है? साउंड उसका डिक्शनरी बेस्ड है. दैट्स वाई हम साउंड्स डी है, देन डिक्शनरी हम कह रहे हैं. दैट्स वाई हमने यहाँ पर ए को यूज़ किया है. सम वर्ड स्टार्ट विद द वाउल्स ए ई आई ओ यू बट इट गिव्स कंसोनेंट साउंड, देन ए इज़ टू बी यूज्ड देयर. लाइक यूनिवर्सिटी. अब यहाँ पर देखें, a union, a unit, a useful, a European, a 1 rupee, a once famous player, a one-sided argument. अब यहाँ पर देखें कोई भी वर्ड यूज़ हो रहा है, ये वाउल्स बेस्ड है. लाइक यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिट, यूजफुल, यूरोपियन, 1 rupee, once famous player. ठीक है, one-sided argument, ये सब वॉल्स लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड्स. ठीक है, देन हमने फिर भी यहाँ पर ए यूज़ किया है. सो इन द नेक्स्ट सिनेरियो में क्या देखते हैं हम? इफ़ अ वर्ड स्टार्ट्स विद द वॉल्स और द वॉल साउंड्स एंड इज़ टू बी प्लेस्ड बिफोर दैट वर्ड, लाइक एन इडियट, एन एक्सीडेंट. सो यहाँ पर हमने क्या किया है? कोई भी ऐसा वर्ड जिसका साउंड भी वॉल्स बेस्ड हो लेकिन उसका वर्ड भी साउंड जो है वो बेस्ड हो रहा है वाउल्स पे, देन हम एन यूज़ करेंगे. ओके, नेक्स्ट सिनेरियो देखें क्या होता है. A word starts with this consonant but it gives a vowel sound that we have to use an. For example, an R, an hotel, an historical, an heroic, and hair. So then हम वहाँ पर an use करेंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो word start हो रहा है with consonants but ये हमें क्या देता है? vowel sounds भी दे रहा है. then हमने an use किया. Next, fifth one जो rule है वो क्या है? If singular noun comes as a complement in a sentence, then we can use a or an. For example, she is an actress. She will be a dancer next year. ओके, सो यहाँ पर देखें एक्ट्रेस, इसका साउंड भी
वाउल्स बेस्ड है, देन हमने यहाँ पर एन यूज़ किया, बट डेंसर नेक्स्ट लेटर उसका वाउल्स बेस्ड है, बट वो हमें डी साउंड कर रहा है, स्टार्टिंग उसका डी से साउंड हो रहा है वर्ड डेंसर, देन हमने यहाँ पर ए को यूज़ किया है। टू मेंशन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ अ पीपल बाय अ पर्टिकुलर पर्सन यूज ए और एन, देन हम क्या करेंगे, अ पीपल should obey his teacher, meaning of all students. Okay, a dog is faithful to his master, meaning of all dogs. A lion is a dangerous animal, meaning of all lions. Okay, so use a or an before the name of professions. He is a teacher, I am engineer. Okay, so यहाँ पर हमने देखें a क्यों यूज़ किया है यहाँ पर teacher sounds from beginning of the T, so हम यहाँ पर टीचर यूज़ करेंगे, ठीक है। सो टीचर के लिए हम ए यूज़ करेंगे। ओके, सो इंजीनियर ई से स्टार्ट है विच इज़ अ वाउल्स लेटर, सो यहाँ पर हमने एन राइट किया है। 8 use a or an after some prepositions like at, of, 2 tablets at a time। ओके, सो हमने यहाँ पर at यूज़ किया है, ठीक है। लाइक सम प्रपोजिशन है उसके बाद भी हम ए या एन को यूज़ करते हैं। बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लाई टुगेदर, यहाँ पर हमने देखें प्रपोजिशन ऑफ है, उसके बाद भी हमने आर्टिकल ए को यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट 9 है, वी हैव टू यूज़ एन इन एब्रीवेशंस बिगिनिंग विद द लेटर्स एफ एच एल एम एन और एस एक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एन एम पी एन एम एल ए and FRCS and SSLC. So note point should be noted over here. She is an MP, she is a member of parliament. So हम इसको a member of parliament write करेंगे, ऐसे नहीं write करेंगे she is an member of parliament. Okay, so वो wrong हो जाएगा। If a sentence has a keyword like one, any, every, certain, then use a or an. For example, he owned a car and 2 taxis, 1 car. A girl has come to see you, certain. Okay, 11 is a is to be used before few and little. I have a few rupees. For example, he received a little money from his friend. ओके, सो हमने यहाँ पर देखा, हमने few से पहले और little से पहले हमने a आर्टिकल को यूज़ किया है, ठीक है। सो ये भी एक रूल है, ये भी एक मेथड है आर्टिकल को यूज़ करने के लिए, ठीक है। रूल नंबर 12, ए और एन कम्स बिफोर or after the verb to be called. It is called a remote, it is called an umbrella. So आपने यहाँ पे देखा, हमने ए और आर्टिकल जो है, एन आर्टिकल जो है, हमने आफ्टर अ वर्ड किसी भी वर्ब के बाद हमने एन और ए को यूज़ किया है, लाइक इट इज़ कॉल्ड अ रिमोट एंड इट इज़ कॉल्ड एन अम्ब्रेला। सो रूल नंबर 13, टू डिनोट अ सर्टेन क्वांटिटी, नंबर, स्पीड, ए और एन कैन बी यूज्ड। ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर, आई वांट अ डजन मैंगोज, क्वांटिटी। सो यहाँ पर हमने क्या किया है, किसी भी नंबर या क्वांटिटी, स्पीड को डिनोट करने के लिए हमने ए और एन को यूज़ किया है, ठीक है। लाइक अब नेक्स्ट जो रूल है, रूल नंबर 14, इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ए और एन कैन बी यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, व्हाट अ लवली ड्रेस, व्हाट अ वंडरफुल मूवी। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस डेफिनाइट आर्टिकल यूसेज ऑफ दी। वी कैन यूज आर्टिकल दी बिफोर ओशंस, rivers, newspapers, and hills, gulfs, peaks, states, banks, forests, etc. सो हम जो आर्टिकल दी है वो हम किसी भी ओशंस, यानी कि कोई वर्ड है ओशंस, ठीक है, हम इनसे पहले, रिवर से पहले, हम न्यूज़पेपर से पहले, हिल्स, गुल्फ, पीक्स, ठीक है, स्टेट्स, ठीक है, बैंक्स, ठीक है, और क्या है, फॉरेस्ट, उससे पहले हम दी जो आर्टिकल है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिफोर द यूनिक ऑब्जेक्ट्स, कोई भी यूनिक ऑब्जेक्ट है लाइक सन है, मून है, अर्थ है, तो उससे पहले हम दी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दी शुड बी यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, जैसे शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ द इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। सो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री हो तो उससे पहले हम दी को यूज़ कर सकते हैं। ओके,
और कोई भी पार्ट्स ऑफ बॉडी है उससे पहले भी हम दी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने किसी पर्सन को मॉडिफाई करना है या उसको मेंशन करना है प्रॉपरली इन अ प्रॉपर फॉर्म, देन हम उससे पहले भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अगर हमने नेक्स्ट सेंटेंस में उसी ऑब्जेक्ट को अगेन यूज़ करना हो, देन हम उसको मॉडिफाई करने के लिए दी को यूज़ करेंगे। लाइक ही गिव मी अ नाइफ एंड अ स्पून, द नाइफ वाज नॉट शार्प। सो हमने यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस में नाइफ से पहले दी को यूज़ कर लिया जस्ट फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो टू mention particular person or object or place, use the बिफोर दैट वर्ड। सो हमने वहाँ पर भी दी को यूज़ किया है। नेक्स्ट रूल नंबर 7, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, यूज द बिफोर दैट नाउन। सो द पैरट इज़ अ क्लेवर बर्ड, ऑल पैरट्स, ठीक है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर दी पैरट और दी फॉक्स यूज़ किया है। नोट अब क्या आपने करना है, जो पॉइंट हाईलाइटेड है वो ये है, दिस शुडंट बी यूज्ड बिफोर मैन और वुमेन व्हेन इट कम्स एज नाउन। हम मैन से पहले दी को यूज़ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर वो एज अ कॉमन एज अ नाउन वहाँ पर आ रहा है, देन हम वहाँ पर दी को यूज़ नहीं करेंगे। लाइक मैन इज़ अ मॉर्टल, ओके, यहाँ पर ये एज अ नाउन जो है वो आ रहा है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर दी को यूज़ किया है, ओके। सो 481 ऑप्शन इसका रूल है वो ये है, टू मेंशन द डेट ऑफ मंथ एंड टू मेंशन द ऑर्डिनल नंबरल adjective, use the before that word. For example, the 7th March, the 30th December. So for example, अगर हमने किसी भी specific date को mention करना है, then हम वहाँ पर दी को write करेंगे for specification of date of the month, okay. So to mention the holy books, use the before that word, like the Bible, ठीक है, the Quran, okay. So next है, नोट करने है आपने पॉइंट, इफ़ यू यूज़ द ऑथर नेम इन फ्रंट ऑफ द बुक, देन हम वहाँ पर यूज़ करेंगे दी, ओके, कि ये किसकी बुक है, ठीक है। तब हम उसको मॉडिफिकेशन के लिए या उसको हाईलाइटेड पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए हम वहाँ पर दी यूज़ करेंगे, प्रोमिनेंट करने के लिए। इन सम केसेस वी यूज़ द सेम वर्ड टू मेंशन द लैंग्वेज एज वेल एज द पीपल ऑफ द कंट्री। इन सच केसेस वी यूज़ दी बिफोर द पीपल बट नॉट बिफोर द लैंग्वेज, लाइक चाइना, चाइनीज़, द चाइनीज़, ओके। सो ये कंट्री यानी कंट्री पीपल को शो कर रहा है, ना कि किसी भी लैंग्वेज को। सो इंग्लैंड, इंग्लिश लैंग्वेज, द इंग्लिश फॉर पीपल, ओके। सो नोट before people of the nation, they should not be used Americans are rich, so the Americans are rich, ये wrong हो जाएगा, okay. So if two actions change in the same ratio, to compare the action, use the in the sentences. For example, the more you learn, the more knowledge you gather, the sooner you go, the sooner you will be back, okay. Omission of articles basically क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, इसके कितने रूल्स हैं और हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। बिफोर द प्लूरल नाउन, द इंडेफिनिट आर्टिकल शुडंट बी यूज्ड। फॉर एग्जांपल, ही इज़ अ लायर इन अ सिंगुलर मैनर, ठीक है। सिंगुलर नाउन में ही इज़ अ लायर, एंड इन प्लूरल नाउन हम कैसे कह सकते हैं, दे आर लॉयर्स, हम वहाँ पर आर्टिकल को यूज़ नहीं करेंगे। सो दीज आर ऑल ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। सो नेक्स्ट रूल है, आर्टिकल शुड be used before an uncountable nouns, okay. So he needs advice, he needs an advice, तो हम यहाँ पर and को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे uncountable nouns हैं, so यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, and को। So next है, we can use pieces of a bit of a sheet of a size, so before the uncountable. For example, I want a piece of cake, I want a sheet of paper. Rules number 3, articles should not be used before breakfast, dinner, supper when it comes normally. For example, we have breakfast at 9 a.m. I was invited to dinner. Note, if the above mentioned words come with adjective or particular reason, occasion, we can use article over there. They gave us a good dinner, adjective good. I was invited to the dinner given to the chairman, particular occasion. So आप
आर्टिकल वहाँ यूज़ कर सकते हैं जिधर पर्टिकुलर कोई रीज़न हो किसी भी सेंटेंस में या कोई पर्टिकुलर ओकेजन हो, देन आप आर्टिकल को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो रूल नंबर 4, नो आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्री, सिटी, स्ट्रीट, मंथ, डे, फेस्टिवल। फॉर एग्जांपल द जापान। सो कहीं पर भी आप आर्टिकल को यूज़ नहीं कर सकते बिफोर नेम ऑफ द कंट्री, ठीक है, सिटी, ठीक है, स्ट्रीट, मंथ, डे या फेस्टिवल हो तो आप वहाँ पर आर्टिकल को यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल द जापान, सो ये रॉन्ग है, देन आप लिखेंगे जस्ट जापान। ओके, सो रूल नंबर 5, generally no articles come before the things and the metals, but to mention the particular metal use the before metal. For example, gold is very costly in general, so the gold that I bought is not genuine particular. ओके, सो ये पर्टिकुलर हो गया है, सो देन हमने यहाँ पर दी यूज़ किया बिफोर गोल्ड वर्ड। रूल नंबर 6, बिफोर लैंग्वेजेस अवॉइड आर्टिकल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हिंदी इज़ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, सो हमने यहाँ पर लैंग्वेज यूज़ की है हिंदी, ठीक है, लैंग्वेज है हिंदी, सो हमने उससे पहले दी को नहीं यूज़ करना, ठीक है, अवॉइड करें आर्टिकल को वहाँ पर यूज़ करने से। सो रूल नंबर 7, आर्टिकल्स नेवर कम बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलाइनेस, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ट्रूथ, नॉलेज, लव, होनेस्टी, पॉवर्टी, विजडम, स्ट्रेंथ, एब्सेंस। सो रूल नंबर 8, अवॉइड आर्टिकल्स बिफोर गेम्स। आप कोई भी गेम प्ले करते हैं तो उससे पहले कोई भी आपने आर्टिकल को यूज़ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आई प्ले टेनिस, देन आप दे प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर भी हमने दी आर्टिकल को यूज़ नहीं किया, ठीक है। रूल नंबर 9, व्हेन कॉमन नाउन कम्स इन प्लूरल आर्टिकल्स शुडंट बी यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल कैट्स लाइक माइस, गर्ल्स प्ले गेम्स। ओके, सो यहाँ पर भी हमने गेम से पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया। So rule number 8, no articles come before the relationship. Brother has gone out, father wants you to see him. Okay, यहाँ पर भी हमने आर्टिकल को यूज़ नहीं करना। So rule number 11, don't use any articles before the names of the countries or continents, but use the before the names of the countries or states, which includes words like republic, union, kingdom, states. So हमने किसी भी स्टेट को अगर हमने मेंशन करना है या किंगडम को, ठीक है, किसी भी यूनियन, रिपब्लिक को, देन हम वहाँ पर दी को यूज़ कर सकते हैं, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम। ओके, सो रूल नंबर 12, डोंट यूज़ articles when the word school, hospital, court, church, prison, market come from the purpose. Okay, so the children go to school, the murderer was sent to prison, then हम the use कर सकते हैं as a article. Okay, so next rule है rule number 13, don't use article before complement and abstract noun. For example, they elected him as president, they elected him as the president. So यहाँ पर देखें, they elected him as president, then हम यहाँ पर the को use नहीं करेंगे before any kind of complement and abstract nouns. Okay, so honesty is the best policy, the honesty is the best policy, ये wrong हो जाएगा। Okay, so rule number 14, avoid articles before names of subjects of study and interest. For example, history, painting, physics, music. I am very much interested in physics. ठीक है, सो आप वहाँ पर भी आर्टिकल को यूज़ नहीं करें, ठीक है। जहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट्स को शो किया जा रहा हो या कोई भी इंटरेस्ट, किसी भी पर्सन का इंटरेस्ट शो किया जा रहा हो किसी भी सेंटेंस में, देन हम आर्टिकल को यूज़ नहीं करेंगे। ओके, सो रूल नंबर 15, बिफोर द नेम्स ऑफ हॉलीडेज एंड फेस्टिवल्स दी शुडंट बी यूज्ड। फॉर एग्जांपल, दिवाली इज़ हिंदूज फेस्टिवल, क्रिसमस हॉलीडेज बिगेंस ऑन 23rd December, देन हम वहाँ पर भी अवॉइड करेंगे आर्टिकल यूज़ करने से। ठीक, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।